Hello everyone. Moving toward the solution of question number 1.6. The question is four charges, 4 point charges QA 2 microcoulomb, QE minus 5 microcoulomb, QC 2 microcoulomb, and QD is equal to minus 5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? Okay, let's see. We have a square. Let the name of the square is given ABCD. On A, the charge is 2 microcoulomb. On B, charge is minus 5 microcoulomb. On C, charge is 2 microcoulomb. And D is minus 5 microcoulomb. Are located at the corners of a square and side of a square is 10 centimeter. This side is 10 centimeter. These sides are 10 centimeter. Okay. Now, what is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? It means the charge is placed at the center of the square. It means charge is here. Let's suppose that charge is capital Q and having value 1 microcoulomb. And we have to find force on a charge of 1 microcoulomb. Okay. Now see here, it is given that AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. That is 10 centimeter. And using the Pythagoras theorem to find the value of BD. Okay. Then the here BD is equal to BC square, that is 10 square, and DC square, that is 10 square, under root. It becomes I will take 10 square common, then 1 plus 1 under root. It is 2 into 10 square. It means we can write like 10 root 2. Okay. And see here, we know the diagonal of the square are equal. It means AC is equal to BD and they are perpendicularly bisector. It means we can say that, let's suppose that is a center O, then AO is equal to OB is equal to OC is equal to OD. Their value is 10 by root 2 by 2. That means 5 by root 2. Now, it is clear from the figure, the separation between the charges is same. Okay, the separation between the charges is same, that is 5 root 2. Now, अब अगर हम यहाँ देखें तो आपको ये दिख रहा होगा कि इस बी के ऊपर जो चार्ज माइनस 5 माइक्रोकूलम रखा हुआ और ये जो ओ सेंटर पे जो चार्ज क्यू रखा हुआ है पॉजिटिव का, इनके पास अपोजिट नेचर के चार्ज है। तो अगर ये अपोजिट नेचर के चार्ज, इनके पास अट्रैक्शन होगा। इट मींस दे विल अट्रैक्ट लाइक दिस। ओके, ये अट्रैक्ट करेंगे और इनका वैल्यू कितना हो जाएगा? इनका वैल्यू हो जाएगा F इज इक्वल टू के क्यू वन, दैट इज 5 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम बाई 5 रूट 2 स्क्वायर। ओके, क्या यहाँ जो डी कॉर्नर के ऊपर चार्ज रखा है माइनस 5 माइक्रोकूलम और ये सेंटर पे जो प्लस है, इनके पास भी नेचर अपोजिट है, तो ये भी क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और जब अट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा क्या इक्वल होगा? ठीक है, अगर इनके दोनों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या? ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, इनका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करें कि ए के ऊपर जो 2 माइक्रोकूलम है और बी के ऊपर 1 माइक्रोकूलम है, दोनों का चार्ज सेम है, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ए के चलते जो चार्ज इसके ऊपर लगेगा रिपल्सिव फोर्स, वो इधर की ओर लगेगा, दैट इज कॉल्ड एफ ए। और सी के चलते जो लगेगा इसके ऊपर, सी के कारण जो लगेगा वो क्या होगा? इस साइड लगेगा, दैट इज कॉल्ड एफ सी। अब देखिए दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सेपरेशन सेम है,
ठीक है, सेपरेशन सेम है। यहाँ पर भी क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन, ये भी क्या हो जाएंगे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ जो मैं लिखता, तो ये बी के चलते अट्रैक्टिव फोर्स है, ये डी के चलते अट्रैक्टिव फोर्स है। देखिए सारा का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब, इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि force on A is equal to force on C in the sense of magnitude. Okay, but opposite in direction cancel each other. Similarly, force on B, force due to B. Okay, ये इक्वल होगा फोर्स ड्यू टू डी का। ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड के सेंस में इक्वल है और डायरेक्शन सेंस में क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब जो एक कुलम चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 माइक्रो कूलम चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज द 0। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू।